Hello everyone, I am Sheila Maitra, President of the Indian Society of Critical Care Medicine. क्या उद्देश्य था? ISCCM is an organization of critical care specialists and this was started in 1993. Now, who is critical care specialist or intensivist? This is the doctor who looks after the sickest of sick patients in the ICU. And as you have seen during the COVID-19 pandemic, the critical care doctors were the COVID warriors and who were at the forefront in treating these patients. And there has been a real dearth of critical care specialists in the country because these are specialized doctors who can manage very sick patients. So right from the beginning, 1993, ISCCM started its mission of educating doctors who came from various specialties in critical care medicine to look after these sick patients. Now, interestingly, most of the qualifications and degrees start from universities or organizations, but critical care was not recognized by as a specialty by the Medical Council of India until 2013. And right from 1993, the Indian Society of Critical Care Medicine has been training doctors in the specialty, super specialty of critical care medicine and produced thousands of doctors giving the diploma, Indian Diploma of Critical Care Medicine. So it has been quite the opposite. It is a society who has started a specialty and then later the governments and the universities have taken this forward. So this is a very, very important work that was done by ISCCM. ISCCM started as a small body of clinicians and it has various specialties like anesthesia, medicine, pulmonology, surgery. So different specialists joined this specialty of critical care medicine. And we started as a small organization of just over 200 critical care specialists, and today the ISCCM has almost 17,000 members from all these various specialties. We have 100 branches. We have just completed the 100th branch this month, and through the branches, 100 branches of ISCCM, we are able to conduct various activities pan-India. Over the last 30 years, we have had 18 presidents, and I am very proud to be the first female president in the 30th year of ISCCM. Today, what we are celebrating is the 30th year of ISCCM, 3 decades of all the glorious work and achievements of this society. As I mentioned earlier, our major strength is education and training of not only the critical care specialists but various doctors across the country, so they can deal with the patients who are sick and save lives. We have many outreach programs for lay public, for example, doing BLS, for doing cardiopulmonary resuscitation, in treating people in basic first aid, etc. across the country, which we execute through our branches. In addition to that, we have also done various activities like BLS training, etc. for the army in Jammu recently we conducted, and we conduct various campaigns for public awareness so that to prevent people from coming into the ICU, and also awareness about various aspects of critical care. Last year we had a campaign called Save the Saviors, and this was done to increase awareness about the violence against doctors that has been there. This year we have a special campaign called Prevent, Treat, Defeat Sepsis. Prevent, Treat, Defeat Sepsis. So sepsis, as you know, is a condition which causes a lot of organ failure, and patients require ventilator and a lot of organ support in ICU. So we have created this big public awareness program through the year so that we can prevent patients, increase awareness about how to prevent the infection and how to prevent patients from coming to the intensive care unit. So this kind of noble service by people from different specialties who have got together has been happening over the last 30 years, and today we are here to celebrate these activities. We also have an Indian College of Critical Care Medicine which runs various courses which are very, very popular. We don't have a university, but the society itself runs a lot of courses, and I'm very proud to say that these courses, like the Indian Diploma of Critical Care Medicine, has become so popular that the countries in Southeast Asia, including Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, even in Africa like Nigeria, South Africa, etc., have approached the Indian Society of Critical Care Medicine to do these courses, and now we have extended our courses
outside India. So people are reaching out to India and our society to do these diploma courses for their doctors. Of the Indian Society of Critical Care Medicine, and Dr. Y.P. Singh is the General Secretary of the Indian Society of Critical Care Medicine. The President-elect, the incoming President, is Dr. Pradeep Bhattacharya, and the General Secretary-elect, that is the incoming General Secretary, is Dr. Bharat Jagyasi. And you all know Dr. Rahul Pandit, who is a very senior intensivist from the city of Mumbai, and also coordinating this press conference. एक बीमारी है जिसका नाम है सेप्सिस. सेप्सिस या संक्रमण बोलते हैं, जंतु संक्रमण नहीं, इसका हिंदी में अर्थ होता है पुती जो बोलते हैं. तो ऑलमोस्ट 40 to 50% पेशेंट इससे आते हैं. और ये हमारा एक बड़ा योगदान रहा है कि ये जो कैंपेन हम कर रहे हैं, प्रिवेंट ट्रीट डिफीट, तो ट्रीटमेंट तो आईसीयू डॉक्टर्स करते ही हैं, पर अगर हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस थ्रू ही हम प्रिवेंट कर सकते हैं. तो हमारी सोसाइटी इसमें लगी हुई है कि पब्लिक अवेयरनेस स्प्रेड करे कि हाउ टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन. ऑफ कोर्स इन्फेक्शन हो जाए और वो उनको ऑर्गन सपोर्ट की जरूरत पड़े और वो आईसीयू में आए तो हम उनकी ट्रीटमेंट करेंगे. तो प्रिवेंशन पे हम ज्यादा जोर लगा रहे हैं और वो पब्लिक अवेयरनेस से ही हो सकती है. तो हमारी 100 हम बताते हैं, हमारे 100 ब्रांचेस हैं जो जस्ट 100 ब्रांचेस फॉर्म किए हैं, और ईच ब्रांच में हम एक प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं 4 घंटे का. और वो प्रोग्राम जो है उसमें 1 घंटा ले पब्लिक के लिए होता है और दूसरे बेसिक एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए होता है. और ये अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग टाइम पे करते हैं अक्रॉस द ईयर. हमने वो एक यूनिफॉर्म प्रोग्राम बनाया है जो IRCCM ने उसकी बेसिक कोर्स मटेरियल स्लाइड्स वगैरह सब तैयार करके वो ब्रांच को दे दिया है. तो वो अपने सारे ब्रांच मेंबर्स, और ये ब्रांचेस छोटी छोटी जगह में है, तो पैन इंडिया हमारे 100 ब्रांचेस है, और थ्रू दीज ब्रांचेस हम अपने एजुकेशनल एक्टिविटीज प्रमोट करते हैं टू ले पब्लिक एंड ऑल्सो द डॉक्टर्स, GPs, MBBS डॉक्टर्स अक्रॉस. अब ये सेंट्रली इसकी कंटेंट बनती है. तो किस तरह का जब तो फिक्स मॉड्यूल है, और मॉड्यूल के 2 पार्ट है. एक पार्ट है ले पब्लिक के लिए और एक पार्ट है सब डॉक्टर्स के लिए. तो जैसे हम क्रिटिकल के स्पेशलिस्ट है तो हम क्रिटिकल पेशेंट्स देखते हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि डिजीज प्रिवेंटेबल है, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. तो बाकी डॉक्टर्स के इन्फॉर्मेशन के लिए भी हमने मॉड्यूल बनाया हुआ है. तो ले पब्लिक के लिए अराउंड 1 आवर का मॉड्यूल है और डॉक्टर्स के लिए 2 घंटे का मॉड्यूल है, जो हमारे सब 100 ब्रांचेस अक्रॉस द नेशन प्ले करेंगे. एनुअल मीटिंग होता है हर साल February-March के महीने में, और अलग अलग सिटीज में होती है अक्रॉस द कंट्री. तभी हम बेसिक लाइफ सपोर्ट, फर्स्ट एड और बेसिक रिससिटेशन ट्रेनिंग करते हैं ले पब्लिक के लिए और डॉक्टर्स के लिए. रिसेंटली लास्ट ईयर हमने जम्मू में आर्मी के लिए भी हमने CPR BLS का ट्रेनिंग कराया था. तो देयर आर वेरियस पब्लिक आउटरीच इनिशिएटिव्स जो इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन करती है. Though it's a society of doctors looking after critically ill patients, we are trying to reach out to the public and the lay people to create awareness and also for prevention of the various critical illnesses. हमारे में क्या फर्क है? तो इसका एक बड़ा जनरल और साधारण से एग्जांपल देना चाहता हूँ. एक साधारण पुलिस वाला और कमांडो में क्या फर्क होता है? तो वही चीज है. हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो कमांडो ट्रेनिंग है, और हम कमांडो तैयार करते हैं. बाकी स्पेशलिटी में जो है IRCCM ये कमी को पूरी करने की कोशिश कर रही है. हम लोग पूरी और ये ट्रेनिंग जो ब्रांचेस में होती है वो डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं, हम जो स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं वो अलग विभिन्न ICUs में काम करते हैं और वहाँ वो दूसरे डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं. तो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ ट्रेन द ट्रेनर. हम ट्रेन करते हैं और वो दूसरे डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं. तो इंडिया जैसे विशाल कंट्री में इतने फास्ट इसको स्प्रेड ये करना मुश्किल है, और सोसाइटी काफ़ी हद तक का योगदान है इसमें, ये स्पेशलिटी को बढ़ाने में और सेविंग लाइव्स. सिर्फ यही नहीं, हम लोग काफ़ी रिसर्च भी करते हैं और गाइडलाइंस बनाते हैं. ट्रीटमेंट कौन सी ट्रीटमेंट कैसे करनी चाहिए. जैसे कोविड में हमने काफ़ी बंडल्स बनाए थे, सर काफ़ी बंडल्स के पार्ट थे, मैडम थी. तो हम लोग गाइडलाइंस बनाते हैं सो डैट किसी को ट्रीट करना है तो वो गाइडलाइंस रेफर करे और उसको रेफर करते हुए पेशेंट्स को आगे. सो इट वाज नॉट पॉसिबल कि हर पेशेंट के लिए कोविड के समय ICU डॉक्टर मिल जाए. तो ले पब्लिक को कैसे मैनेज करना चाहिए, क्या करना चाहिए. IRCCM ने बहुत ही फास्ट गाइडलाइंस बनाए, नेशनल गाइडलाइंस जो हमने वेबसाइट पर पब्लिश कर दिए. इसके अलावा एक उदाहरण चाहूंगा सर कि गाइडलाइन जो आपने बनाई थी, पब्लिक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. निमोनिया वेबसाइट पे गाइडलाइंस 2 प्रकार की बनी ना. एक प्रकार की गाइडलाइन थी जो कि डॉक्टरों के लिए बनी कि ट्रीटमेंट कैसे करें, चिकित्सा कैसे करें, ट्रीटमेंट कैसे करें.
और दूसरा जो था वो प्रिवेंटिव गाइडलाइन। प्रिवेंटिव गाइडलाइन तो हमें कैसा बचना वो बताया, हाँ। जो कि हमने सब कुछ किया, जहाँ पे कि हमने एजुकेट भी किया। हमारा कोविड के वक्त पूरा वर्कफोर्स जो है इंटेंसिव का काम कर ही रहा था, बिकॉज वी वर फ्रंट लाइन वर्कर, तो एजुकेशन हो ही रहा था, सब कुछ चल ही रहा था उस वक्त। तो ये जो गाइडलाइंस बनी, ये स्टेट की गाइडलाइन जैसे हमने बनाई, जो स्टेट की गाइडलाइंस है, नेशनल गाइडलाइंस जो हमने बनाई, उसके अलावा क्रिटिकल केयर की जो एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस बनती गई वो IICCM ने पब्लिश की। जैसे जैसे एविडेंस मिलता है, और ये गाइडलाइंस की एक खासियत है, ये है कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो गाइडलाइंस बनाई, हम उसको रिप्लिकेट नहीं करना चाह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इंडिया की जो यूनिक प्रॉब्लम्स है, मलेरिया, डेंगू, ट्यूबरकुलोसिस, हमारे जो यूनिक प्रॉब्लम्स है, जो डेवलपिंग वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स है, उसके लिए बहुत अच्छे गाइडलाइंस नहीं है बाहर, और हमारे पास बहुत डेटा है और रिसर्च हुआ है कंट्री में। तो इसको लेके एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस IICCM बना रही है, ताकि डॉक्टर्स स्मॉलेस्ट टाउन जिनको गाइडेंस नहीं है और इंटरनेशनल डेटा नहीं है इस पर, तो उनको काफ़ी गाइडेंस मिल जाए हमारे गाइडलाइंस। तो इस साल IICCM ऑलमोस्ट 13 गाइडलाइन बना रही है, वेरियस ये सब हमारी जो प्रॉब्लम्स है, हमारी जो समस्याएं हैं, उसका गाइडेंस फॉर ट्रीटमेंट डॉक्टर्स के लिए हमारे जो ट्रीटमेंट्स एज वेल एज हमारे जो रिसोर्स की कमी है, तो रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग्स के भी हम गाइडलाइंस बना रहे हैं कि रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग्स में कैसे काम करना। आपके पास अगर ICU बेड ना हो, आपके पास वेंटिलेटर, डिफरेंट चीज़ें नहीं हो, उसकी कमी हो, क्योंकि इस तरह की गाइडलाइंस इंटरनेशनली नहीं बनती है, और इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन हमारे प्रॉब्लम्स को समझती है, और हम इस तरह की गाइडलाइंस